Hello students, today we are going to learn lesson number 5, the birth of the United Nations part 4. In previous period we learned about formation of the league. Today we will revise it again. Okay. So the industrial revolution started in England and soon spread to other nations like Germany, France and Portugal. These industrialized countries needed two things, namely the raw materials for manufacturing and the new markets to sell the goods manufactured by them. They got both their purposes solved in the non-industrialized Asian and African countries. Soon they started colonizing these countries to make themselves wealthy. As a result, they became jealous to each other and wanted their own empires to flourish. They started fighting among themselves, which finally led to a great war. This war was this war was called the World War. First, it broke out in 1914 and lasted till 1918. Many cities were devastated, millions of innocent people and soldiers lost their lives. As a result, there arose scarcity of food and everything. Horrified by the devastation caused by war, countries were inspired to come together and work towards peace. ओके तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड रिवॉल्यूशन हुआ था सबसे पहले कौन सी कंट्री में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था और फिर उसके बाद में बाकी अदर कंट्री जैसे फ्रांस है, पुर्तगाल है, इटली है, ये जर्मनी है, इन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइज हुआ और वो जब उन्होंने मैन्युफैक्चर थिंक किया रॉ मटेरियल से तो उसे बेचने के लिए उनको मार्केट की ज़रूरत पड़ी और मार्केट जो है उनको नॉन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ जो थी अफ्रीका की और एशिया कॉन्टिनेंट की वो उन्हें मिली। जब वहाँ पर वो अपना व्यापार शुरू करने लगे तो आपस में वो जेलस होने लगे क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ थी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ जो थी वो अपना एम्पायर सेट करना चाहती थी, वहाँ पर फ्लोरिश करना चाहती थी और इस वजह से जो है उनकी ये लड़ाई जो है ग्रेट वार में परिवर्तित हो गई और इस ग्रेट वार को बुलाया गया पहला विश्व युद्ध। ओके और पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से 1918 तक और उसमें बहुत सारी जैसे सिटीज़ थी वो उसमें डिवास्टेटेड हुआ, नुकसान हुआ, मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल और सोल्जर्स जो थे उन्हें अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी और उन सिटीज़ में फूड की स्कैरसिटी बढ़ी, हर चीज़ की। तो ये हॉरिफाइड जो हुआ था वार की वजह से डिवास्टेशन, वो उससे क्या हुआ कि जो जितनी भी कंट्रीज़ जो थी वो इंस्पायर्ड हुई कि अब ये जो युद्ध वाला जो वार वाला जो वातावरण है उसको अब ख़त्म किया जाए और शांति के लिए वो सभी कंट्री साथ में आए। Okay, so they formed the League of Nations to achieve that goal. The League had a total of 63 member nations, including some of the world's greatest powers like France, the United Kingdom, Italy, Germany, Japan, and the USSR. But the League was not successful because it had two major flaws. One of the world's most powerful countries, the USA, was not its member. The members did not oppose aggression by Japan, Italy, Germany in 1930s. As a result, this aggression led to World War II, which lasted from 1939 to 1945. Okay, तो students you have to remember what कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, वो कब से कब तक चला, 1939 से शुरुआत उसकी हुई और 1945 तक चला, मतलब कुल जो है 6 साल तक दूसरा विश्व युद्ध चला। ओके, तो जो लीग ऑफ नेशंस जो की स्थापना हुई थी वो फेल हो गई क्योंकि उसमें दो फ्लॉज थे। पहला ये था कि जो दुनिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिटीज़ थी, पावरफुल कंट्रीज़,
यूएसए उसकी मेंबर नहीं थी। ओके, सो then we learnt birth of the United Nations. Okay, so the league failed but the idea of the league did not die. जो लीग ऑफ नेशन था वो तो फेल हो गया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो है उसी लीग ऑफ नेशन की आइडिया जो थी वो यूज की गई। इन 1941 यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल signed the Atlantic Charter, in which they pledged to work towards a more effective system to maintain peace in the world and promote cooperation. In 1942, the representatives of allies and the World War II coalition of 26 countries fighting against Italy, Germany and Japan signed a declaration. Okay, तो 1941 में यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन और ब्रिटिश प्रेस के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल जो है इन्होंने अटलांटिक चार्टर को साइन किया, जिसमें उन्होंने शपथ ली कि वो सभी जो है काम करेंगे किसके लिए, मोर इफेक्टिव सिस्टम जो कि पूरी दुनिया में क्या मेंटेन कर सके, पीस को मेंटेन कर सके और प्रमोट कर सके कोऑपरेशन को। ओके, तो 1942 में जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उस अटलांटिक चार्टर के, तो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हुआ कोalition, उसमें 26 कंट्रीज जो है वो किसके खिलाफ लड़ी, इटली, जर्मनी और जापान के खिलाफ लड़ी। ओके, in this declaration they accepted the principles of Atlantic Charter. After a year, 4 of the allies, the United States, the United Kingdom, the Soviet Union and China, agreed to establish a general international organization, and the 4 countries met in 1944 at the Dumbarton Oaks Estate in Washington DC and drafted a charter for the new organization. They called this organization the United Nations. Finally, the United Nations was born in the year 1945. तो जैसे डिक्लेरेशन में जो हुआ था, उन्होंने जो जितने भी 26 कंट्रीज थी उन्होंने किसके खिलाफ लड़ी, जर्मनी के खिलाफ लड़ी। देन और कौन सी कंट्रीज जो थी जिसके खिलाफ जो है वो लड़ी, जर्मनी, जापान के खिलाफ और इटली के खिलाफ। ओके, तो जो भी डिक्लेरेशन था उसको एक्सेप्ट किया, वहाँ के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया अटलांटिक चार्टर के, और 1 साल के बाद में 4 अलाइज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत यूनियन और चाइना, इन्होंने एक जनरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जहाँ पर ये 4 कंट्रीज जो है 1944 में एक डम्बरटन ओक्स वाशिंगटन डीसी में मिली और उन्होंने एक चार्टर जो है ड्राफ्टेड किया न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसे यूनाइटेड नेशंस कहा गया। और फाइनली जो है यूनाइटेड नेशन जो है उसका जन्म, उसकी स्थापना 1945 को हुई। द नेम यूनाइटेड नेशंस वाज कॉइन्ड बाय प्रेसिडेंट एमडी रूजवेल्ट ऑफ द यूएसए। और यूनाइटेड नेशन इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम किसने दिया, एमडी रूजवेल्ट ने, जो कि अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने दिया है। ओके, a set of rules and regulations called the Charter of the United Nations was made at conference in San Francisco, USA. Okay, and it was signed by 50 members countries including India on 24 October 1945. This day is celebrated as UN Day. Okay, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में सेट है रूल्स और रेगुलेशन के, जिसे चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, जो कि कहाँ पर बना, सैन फ्रांसिस्को की कॉन्फ्रेंस में बना, यूएसए में। ओके, और इसे साइन किसने कंट्रीज ने किया है, 50 मेंबर कंट्रीज ने किया है, जिसमें हमारा भारत, हमारा इंडिया भी इंक्लूड है। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई और सभी 50 मेंबर्स कंट्री ने उसे साइन किया, और इस वजह से इस 24 अक्टूबर को यूएन डे भी कहा जाता है, यूएन डे के रूप में सेलिब्रेटेड भी किया जाता है। द यूएन वाज फाउंडेड टू प्रमोट पीस एंड प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वार। और यूएन जो है उसने
फाउंडेड की है कि दुनिया में वो पीस बरकरार रखे और जो अब जब तक कि जैसे 2 विश्व युद्ध हो सके वैसा विश्व युद्ध अगली बार ना हो। ओके, to encourage continued US involvement, the UN placed its headquarter in New York City। और यूनाइटेड स्टेट का हेडक्वार्टर कौन सी सिटी में है? न्यूयॉर्क सिटी में है। ओके, आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट main principles in previous period। Okay, so there were a number of principles set in the charter of the UN। all the members countries must agree with these principles, which would help the UN to achieve its goals। and the principles are: all the member countries should respect the sovereignty and rights of each other। Second, threats and the use of force should be avoided। only peaceful means should be used to settle disagreements। And last principle of United States is they must support and cooperate with the UN in all its activities। After that, we will learn today about the objectives of the UN। Okay, to maintain international peace and security, security, to settle disputes between the member states by peaceful means, to develop friendly relations among nations with equal rights for all, to improve the conditions of the people of the world peacefully in cooperation with other nations, to promote respect for human rights and supports the freedom of all people without discriminating on the grounds of race, sex, religion, and language, to provide a meeting place where all members can work together to achieve these common goals। Today, 193 countries are members of the UN. Membership of UN enabled nations to bring their problems टू द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स में ये है कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शांति को मेंटेन करना है, सिक्योरिटी देना है। जितने भी जैसे जो भी मेंबर है यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड नेशन के, अगर 2 मेंबरों के बीच में कोई भी तरीके की डिस्प्यूट्स हो जाए तो उसको सेटल करना है बाय पीसफुल मीन से। ओके, देन सेकंड ऑब्जेक्टिव्स ये है कि फ्रेंडली रिलेशन जो है नेशंस के बीच में डेवलप करना है और सभी को इक्वल राइट्स देना है। ओके, इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ वर्ल्ड पीसफुली इन कोऑपरेशन विद अदर नेशन। जितने भी जैसे अदर नेशंस जो है, अदर मेंबर नेशंस है, अगर वहाँ के लोगों की कंडीशंस पुअर है या जो भी है तो उनकी कंडीशंस में क्या करना है, इम्प्रूवमेंट लाना है, वो भी पीसफुली। ओके, देन फोर्थ ऑब्जेक्टिव्स है यूनाइटेड नेशन का, वो है कि रिस्पेक्ट को प्रमोट करना है, ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट को प्रमोट करना है और सपोर्ट करना है जितने भी लोग हैं उनके फ्रीडम को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेटिंग। जैसे कोई जैसे सेक्स, धर्म या भाषा या रेस को छोड़कर जो है इन सबको इनसे भेदभाव नहीं करना है, सबको इक्वल लेना है, सबके फ्रीडम को सपोर्ट करना है। ओके, देन लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन, द प्रोवाइड ए मीटिंग प्लेस प्रोवाइड करना है जहाँ पर यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक साथ काम कर सके अपने कॉमन गोल्स पर। जब यूएन की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी, तब ओनली कितने मेंबर्स थे? 50 मेंबर्स थे। बट टुडे 193 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूएन। अभी कितनी है? 193 कंट्रीज मेंबर है। और इस मेंबरशिप जो है यूएन का, वो इनेबल करती नेशंस को
to bring their problems to United Nation Organization. ये 193 कंट्रीज जो है, अगर 2 कंट्रीज के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ब्रिंग करती है, लाती है और वहाँ पर उसे शांतिमय तरीके से सुलझाया जाता है. Okay, so student, we have completed this lesson here. Okay, understood? I hope you understood. Bye.